السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ چلیے انشاءاللہ آج ہم جو ہے اس ویڈیو میں سبق نمبر 8 رباعیات جس کا نام ہے، اس میں شعراء کرام ان کے اشعار ہیں امجد اور انیس کے، ٹھیک ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ان کا تعارف بھی پڑھا اور رباعیات کو بھی تفصیل سے پڑھا۔ اب آگے کا کام ہم کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کھولیے صفحہ نمبر 65۔ اس میں جو ہے بٹ الف بے چھوڑ دیجئے، جیم دیکھ لیجئے۔ رباعیوں میں ذیل کے الفاظ کی شناخت کرتے ہوئے انہیں خط کشید کیجئے، انڈرلائن کیجئے، خط کشید کیجئے اور انہیں رباعی کے لحاظ سے سلسلہ وار ترتیب میں لکھیے، ٹھیک ہے، سیریل میں، فریکوینس میں لکھنا ہے آپ کو۔ جلوے، زباں، دانا، دریا، ممکن، نماز، حیراں، پھول، رنگ، دوا، جی سب لکھنا ہے آپ کو۔ دیکھیے کیسے لکھنا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نماز، دوا، ممکن، دانا، زبان، رنگ، جلوے، پھول، دریا، حیران۔ ہو سکے تو آپ اس کو جو ہے پاز کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے بٹ 3 اور بٹ 3 کے اندر جو ہے الف بے، یہ بھی جو ہے بٹس آپ کو نوٹس میں دیے جائیں گے، اس میں دیکھ کے آپ کو کلاس ورک میں کاپی کرنا رہے گا۔ بٹ 4 دیکھیے، الف ذیل کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ اس میں الفاظ دیے گئے، ان سے جملوں میں میک ون سینٹینس جس کو کہتے ہیں، آپ کو جملے بنانا ہے۔ یہ آپ کو ریڈر میں لکھنا نہیں ہے، کلاس ورک میں لکھنا ہے، جو کہ ہم نوٹس میں آپ کو لکھ کے بھیجیں گے۔ آپ اچھی طریقے سے دیکھ کے سمجھ کر کے اس کو کاپی کرنا ہے، یا اس جیسے آپ الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ بٹ بے، نیچے ذیل کے جملے پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ کے ہم معنی الفاظ رباعیوں میں سے تلاش کر کیجئے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجئے۔ میں بتاتا ہوں، دیکھیے آپ کیسے جملہ بنانا وہ بھی بتاتا ہوں۔ احمد روزی کی تلاش میں حیدرآباد گیا۔ احمد روزی کی تلاش میں حیدرآباد گیا۔ اس میں انڈرلائن کیا ہوا ہے تلاش۔ تلاش کے معنی کیا ہے؟ ہم معنی کیا ہے تلاش کے معنی؟ جستجو۔ اس سے اب آپ جملہ بنائیے۔ میں نے بہت جستجو سے پڑھا، تب جا کے میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا۔ اس طریقے سے۔ نمبر 2، کوئی بات چیت کر رہا ہو تو درمیان میں نہ بولیں۔ کوئی بات چیت کر رہا ہو تو درمیان میں نہ بولیں۔ جی بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں چلا رہے ہیں تو بیچ میں بات نہیں کرنا۔ نمبر 3، بلی نے چوہے کو اپنا نوالا بنایا۔ بلی نے چوہے کو اپنا نوالا بنایا۔ یہاں کیا ہے؟ نوالا، لقمہ۔ صحت مند رہنے کے لیے تفریح ضروری ہے۔ تفریح بولے تو سیر۔ موبائل فون کے گم ہو جانے پر اصغر پریشان ہو گیا۔ پریشان، حیران۔ اس خیالی پرندے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس کے سر پر سے گزرتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ خیالی پرندہ کون ہے؟ ہما۔ نمبر 7، نیکسٹ پیج۔ ریاض نے اختر کے دروازے پر دستک دی۔ دستک دی، دروازہ در۔ چلیے اس کے بعد میں نیچے دیکھیں بٹ جی، قدرتی مناظر سے متعلقہ الفاظ سے جملے بنائیے۔ یہاں پر جو ہے انہوں نے بنایا ہے، اس سے جو ہے ہم کو جملے بنانا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا لکھا ہوا پر۔ صحرا، دریا، معدن، کوہ، دشت، قدرتی مناظر ہے یہ۔ اب ہم بنائیں گے سب سے پہلے صحرا سے، اوپر والے سے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اوپر ایک بنایا گیا، دیکھیے کوہ ہمالیہ سے گنگا ندی نکلتی ہے۔ کوہ ہمالیہ سے گنگا ندی نکلتی ہے۔ اس کے بعد صحرا سے بنائیے۔ مانسونی علاقوں میں، مانسونی علاقوں میں صحرا پایا جاتا ہے۔ صحرا آ گیا دیکھیے اس میں، مانسونی علاقوں میں صحرا پایا جاتا ہے۔ دریا سے بنائیے۔ دریا سے پانی حاصل کر کے کسان کھیتی کرتے ہیں۔ کسان کھیتی کرتے ہیں۔
दश्त, दश्त में जंगल, दश्त की लकड़ी फर्नीचर में इस्तेमाल होती है, दश्त की लकड़ी फर्नीचर में इस्तेमाल होती है। मादन, सोने के मादन कोलार में पाए जाते हैं, सोने के मादन गोल्ड माइंस, सोने के मादन कोलार में हैं। कोह नीलगिरी में चाय के बागात पाए जाते हैं, वो है नीलगिरी में चाय के बागात पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर तखलीकी इजहार वगैरह आपको नोट्स में मिलेंगे। इसके बाद आगे आए तो बिट 8 जुबान शनासी, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्यों? पिछले सबक में हमने जुबान शनासी में कवायद में फ़ेल की 3 किस्मों को पढ़ा था, फ़ेल के 3 किस्मों को हमने पढ़ा था। अब आगे की किस्में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको याद दहानी के लिए बता दूं, फ़ेल माज़ी के 3 किस्में हमने पढ़ा था। माज़ी मुतलक, याद आ गया जी, माज़ी करीब और माज़ी बईद। जिस फेल में ताय्युन के बगैर खाली काम हो गया पिछले ज़माने में, बल्कि समझ में आ गया, उसको माज़ी मुतलक बोलते हैं। जिस फेल में अभी करीब के ज़माने में हो गया, वैसे अगर मालूम हो रहा तो माज़ी करीब, और बहुत देर हो गई काम करके तो वो माज़ी बईद। इसमें हमने मिसालें भी दी हैं। अहमद ने पढ़ा, कब पढ़ा, क्या है, कुछ नहीं, मुतलक पढ़ा है। कौन? अहमद पढ़ा है, और अहमद पढ़ा था। इस तरीके से एक ज़माना है, देर हो गई, पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे, देख लीजिए, फ़ेल माज़ी की पहली 3 अक़साम माज़ी मुतलक, माज़ी करीब और माज़ी बईद से मुताल्लिक़ आप पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। अब हम दीगर अक़साम जैसे माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी इह्तिमाली और माज़ी तमन्नाई से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। इन जुमलों पर गौर कीजिए और फ़र्क पहचानिए। अहमद आया, जी माज़ी मुतलक, वेरी गुड। अहमद आया है, माज़ी करीब। अहमद आया था, माज़ी बईद। अहमद आ रहा था, अहमद आ रहा था कंटिन्यूअसली, पिछले ज़माने में आ रहा था, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आया नहीं, आ रहा था, तो माज़ी इस्तिमरारी बोलते हैं। इस्तिमरारी के माने लगातार होना। ठीक है, अहमद आया होगा, शकी एहतिमाल हो सकता, अहमद आया होगा, कल अहमद क्लास को आए थे जी, हाँ आया होगा, आए समझ में जी। लास्ट में देखिए, अगर या काश अहमद आया होता, काश कल अहमद आया होता, काश आज अहमद आया होता, काश राशिद पढ़ा होता, ये काश आमिना गई होती, जी इस तरीके से। अब देख लीजिए, इन जुमलों पर चौथी सूरत में अहमद के आने का फेल अभी जारी है। चौथे बॉक्स में, चौथी सूरत में अहमद के आने का फेल अभी जारी है, आया नहीं, आ रहा था, मुकम्मल नहीं हुआ है। वो फेल माजी जिससे किसी काम का गुज़श्ता ज़माने में जारी रहना मालूम होता है, वो फेल माजी इस्तिमरारी कहलाता है। वो फेल क्या कहलाता है? माजी इस्तिमरारी। उसको पहचान, उसकी पहचान ये है कि जुमला रहा था पर ख़त्म होता है। पढ़ रहा था, खेल रहा था, सो रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ठीक है, देख रहा था पर खत्म होगा। फिफ्थ में, पांचवी सूरत में अहमद के आने के बारे में शक पाया जाता है। शक है, आया था कि नहीं थी, बोले साहब आया था या आया होगा, आया था नहीं आया होगा जी। वो फेल माजी जिसमें किसी काम का गुज़श्ता ज़माने में होना शक वो एहतिमाल के साथ हो, माजी शक्की, फेल माजी शक्किया या एहतिमाली कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि जुमला रहा होगा पर ख़त्म होता है, जुमला रहा होगा पर ख़त्म होता है। आखिरी सूरत में अहमद का आना शर्त के साथ पाया जा रहा है,
शर्त के साथ पाया जा रहा, आया होता तो अच्छा था, काश तो अच्छा था, अगर आया हो तो इस तरीके से। वो फेल माजी जिसमें किसी काम के करने या होने में कोई शर्त या तमन्नाई की जाए या तमन्ना पाई जाए, उसे फेल माजी शर्तिया या फेल माजी तमन्नाई कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि जुमला काश या अगर से शुरू होगा, काश या अगर से शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। इस तरह फेल माजी की 6 किस्में हुई, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, और इसके बाद बॉक्स में लिख लीजिए आपको माजी इस्तिमरारी या नातमाम, माजी एहतिमाली या शक्किया, माजी तमन्नाई शर्तिया। ठीक है, 6 किस्म हुए। अब नीचे देखिए अलिफ, इन जुमलों को पढ़िए और समझकर माजी के अक़साम की निशानदही कीजिए। जुमला पढ़ने के बाद आप समझिए ये फेल माजी की 6 किस्मों में से कौन सी किस्म है, वो ब्रैकेट में आप लिखिए। नंबर 1, काश मैं गया होता, काश मैं गया होता है ना, काश जिसके शुरू में है काश या अगर, तो वो माजी तमन्नाई, ठीक है, माजी शर्तिया है ना, तो लिखिए तमन्नाई। नंबर 2, तय्यबा किताब पढ़ी, तय्यबा किताब पढ़ी, पढ़ी है, पढ़ी थी नहीं, पढ़ी मुतलक, जी माजी मुतलक। सलमा अभी घर गई, अभी घर गई, माजी करीब। बारिश हुई, माजी मुतलक। शादा खेल रही थी, खेल रही थी, यस माजी बईद। अगर तुम खत लिखे होते, अगर आगे देखिए माजी शर्तिया या एहतिमाली। शायद नफीस बर्तन साफ कर रही है, शायद शक है, शायद नफीस बर्तन साफ कर रही है, ये शक्की माजी शक्की। गुलशन में फूल महका है, गुलशन में फूल महका है, माजी करीब। नंबर 9, शरीफ आया था, शरीफ आया था, माजी बईद। नंबर 10, परिंदे चहचहा रहे थे, माजी बईद। चलिए अब नीचे देखिए बिट में जदवल के मुताबिक 2-2 जुमले बनाइए, जदवल में बनाए हैं 2-2, माजी मुतलक के, करीब के, बईद के, इस्तिमरारी के, एहतिमाली के, तमन्नाई के, जुमला जुमला। पहले एक जुमला बॉक्स दिए, 2-2 जुमले बनाना, मैं पहला बनाना दिखाता हूँ। माजी मुतलक, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, राशिद गया, राशिद गया, माजी करीब। चाय तैयार है या चाय पकी है, राशिद खेला है, माजी बईद। घंटी बजी है, राशिद खाया था, बजी थी है, बजी है नहीं है, माजी बईद। घंटी बजी थी, ठीक है, माजी इस्तिमरारी और नातमाम। अहमद खेल रहा था, इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी लगातार हो रहा। उस्ताद पढ़ा रहे थे, माजी एहतिमाली या शकिया। राशिद आया होगा, अम्मार गया होगा, माजी तमन्नाई या शर्तिया। हुसैन पढ़ा होता, काश हुसैन पढ़ा होता, या अगर हुसैन पढ़ा होता, काश मैं गया होता, इस तरीके, ठीक है। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझ गए आप। और नेक्स्ट दूसरे वीडियो का हम दूसरे वीडियो में या अगले वीडियो में और मजीद इसके बाद आने वाले अल्फाज या उसके बाद आने वाले लेसन को हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़।